discuss part 1 of chapter 6, that is molecular basis of inheritance. In this part we will discuss about the Griffith experiment or principles of transformation. Now we will discuss about the bacterial transformation or Griffith's experiment. Transformation was first studied by a British doctor, S.F. Griffith, in 1928. He was studying the pathogenicity of different strains of bacterium, Streptococcus pneumoniae. They are also known as Diplococcus pneumoniae. Diplococcus pneumoniae is the bacteria which causes pneumonia in mammals. In 1928, Frederick Griffith found that there were two strains of D. pneumoniae, one that formed the smooth colony protected by a capsule and known as S strain or virulent strain. Other one that forms the irregular or rough colonies and without a capsule were R strain or non-virulent strain. So this Griffith, he was a doctor by profession. He was studying the pathogenicity of some strain of Streptococcus pneumoniae. He was having two strains of Streptococcus pneumoniae. One was S type and he found that this S type is virulent. Virulent means that it can cause pneumonia and cause death of the organism. This virulency is because of the presence of sheet of mucilage. Mucilage is a polysaccharide that forms a covering around the S-type strain of bacteria. Next one is the R-type. It's a non-virulent strain of bacteria. This sheet was absent. Here we can draw like this, that is a bacteria covered by a sheet. This sheet is supposed to be for both the purposes, for example protection as well as pathogenicity. एस टाइप पैथोजेनिक इसलिए है, वायरुलेंट इसलिए है क्योंकि इनके चारों तरफ ये एक म्यूसिलेज की शीट पाई जाती है, जबकि आर टाइप में इस तरह की कोई भी शीट प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए ये आर टाइप नॉन वायरुलेंट होता है, यानी ये कोई डिजीज़ कॉज नहीं करता है और उस डिजीज़ की वजह से एनिमल की डेथ भी नहीं होती है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि वाई दे आर नोन एज एस टाइप एंड वाई दे आर आर टाइप। दे आर नोन एज एस टाइप बिकॉज ऑन कल्चर प्लेट when they are grown on some suitable medium, they form a smooth culture and they form a rough culture. That's why known as S type and they are known as R type. But important point here is to which should be noted that S type are virulent and they are non-virulent. S type are virulent because of the presence of sheet of mucilage, and R type is non-virulent because this sheet of mucilage is absent here. Griffith performed his experiment by injecting the above bacteria into mice and found the following results. First, he injected the S-third of virulent bacteria into the mouse. The mice developed pneumonia, finally died. Then he injected the R-second or non-virulent bacteria
into the mouse, and mice suffered no illness and mice was alive. ये जिंदा रहता है. When Griffith injected heat-killed S-third bacteria into mice, they did not suffer from pneumonia and thus survived. In fourth step, a mixture of R-type and heat-killed S-type were injected into the mice. The mice developed pneumonia and the mice died. तो ग्रिफिथ ने इसको 4 स्टेप में परफॉर्म किया. फर्स्ट स्टेप से पहले इसने S-थर्ड या वायरुलेंट बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट किया. माइस को निमोनिया हो जाता है और माइस की डेथ हो जाती है. उसके बाद इसने R-सेकेंड और नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट किया. माइस को कोई इलनेस नहीं होती है और माइस सरवाइव करता है, इसकी डेथ नहीं होती है. इसके बाद ग्रिफिथ ने हीट किल्ड S-थर्ड बैक्टीरिया जो फर्स्ट टाइप का था, इसको इसने 82 से 90 डिग्री सेल्सियस पर वाटर में बॉईल किया. यानी ये जो बैक्टीरिया है वो मर जाता है. और इस हीट किल्ड S-थर्ड बैक्टीरिया को जो माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस सरवाइव करता है और उसे निमोनिया नहीं होता है. फोर्थ स्टेप में इसने एक मिक्सचर लिया. इसने एक R-सेकेंड नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया और हीट किल्ड S-थर्ड बैक्टीरिया. हमने ये देख चुके हैं कि R-सेकेंड सेपरेटली नॉन वायरुलेंट है, इससे माइस नहीं मरता है. और S-थर्ड हीट किल्ड S-थर्ड ये भी नॉन वायरुलेंट है, इससे भी माइस नहीं मर रहा है. थर्ड स्टेप में हमने देखा जब इन दोनों को मिक्स करके माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया तो उनको निमोनिया होता है और माइस की डेथ हो जाती है. This shows that some factor from dead capsulated smooth cells converted the non-living virulent rough cells into living smooth capsulated cells. तो इसका जो कंक्लूजन निकाला गया कि हीट किल्ड S-थर्ड बैक्टीरिया से कुछ फैक्टर्स निकले हैं और ये फैक्टर्स R-सेकेंड को वायरुलेंट बना देते हैं. Here again we can see the same experiment. Diagram of the same experiment is given here. यहाँ पर ये S-सेकेंड स्ट्रेन है बैक्टीरिया की, इसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया, माइस की डेथ हो जाती है. दूसरा R-थर्ड स्ट्रेन बैक्टीरिया जो नॉन वायरुलेंट है, जब माइस में इंजेक्ट करते हैं तो माइस सरवाइव करता है. हीट किल्ड S-सेकेंड स्ट्रेन को जब इंजेक्ट किया गया तो माइस सरवाइव करता है. हीट किल्ड करने के लिए बैक्टीरिया को 82 से 90 डिग्री सेल्सियस पर वाटर में बॉईल किया जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया किल्ड हो जाता है और वो माइस में निमोनिया कॉज नहीं करता और माइस सरवाइव करता है. लेकिन जब S-सेकेंड और हीट किल्ड R-थर्ड बैक्टीरिया को जब माइस में इंजेक्ट किया जाता है तो यहाँ पर माइस को निमोनिया होता है और माइस की डेथ हो जाती है. तो इस एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन था वो ये था कि यहाँ से कुछ केमिकल S-सेकेंड से कुछ केमिकल हीट किल्ड S-सेकेंड से कुछ केमिकल निकलकर R-थर्ड जो कि नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया है इसके अंदर जाते हैं और इसको वायरुलेंट बना देते हैं. होता क्या है कि ये कुछ लिमिटेशन थी ग्रिफिथ्स के प्रिंसिपल की कि उसने वो ये नहीं बता सके कि बैक्टीरिया के किस पार्ट की वजह से R-थर्ड वायरुलेंट बन जाता है, कि ये पॉलीसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन है या ये DNA है, कि S-थर्ड से कौन सी चीज़
R3 को एक वायरुलेंट में कन्वर्ट करती है। क्या ये डीएनए है, ये प्रोटीन है, या एक कार्बोहाइड्रेट है? तो इसका पता नहीं चल पाया था कि इन तीनों में से कौन सी चीज़ ऐसी है जो R3 को वायरुलेंट बना देती है, क्योंकि R3 नॉन वायरुलेंट है, लेकिन जब हीट किल एज सेकेंड के साथ इसको रखा जाता है तो ये वायरुलेंट बन जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है? तो ग्रिफिथ ने ये वर्ड यूज किया था कि देयर आर सम फैक्टर, सम केमिकल्स आर देयर विच कन्वर्ट द R3 non-virulent bacteria into a virulent bacteria. In 1944, Avery, McCarty and MacLeod supported the Griffiths experiment by molecular explanation. What they did, they purified biochemicals from the heat-killed S-type bacteria into three components: DNA, carbohydrate, and protein. DNA fraction was divided into two parts, one with DNase enzyme and other without DNase enzyme. The four components were then added to separate culture tubes containing R-type bacteria. The culture tube were then analyzed for bacterial population. After some time, they found that DNA isolated from the heat-killed smooth cells, when added to the rough cells, changed their surface character from R to smooth and also made them virulent. क्योंकि ग्रिफिथ ये नहीं पता कर पाए थे कि एस सेकेंड जो बैक्टीरिया है, हीट किल बैक्टीरिया है, इसका कौन सा पार्ट R3 के अंदर जाता है और उसको वायरुलेंट बना देता है। इसको सपोर्ट करने के लिए एवेरी, मैकार्टी और मैकलियोड ने ये एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें उन्होंने एस सेकेंड बैक्टीरिया के जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट किया, डीएनए को आइसोलेट किया, कार्बोहाइड्रेट आइसोलेट किया, प्रोटीन आइसोलेट किया। डीएनए को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट में डीएनए प्लस डीएनएज एंजाइम लिया, दूसरे में सिर्फ डीएनए लिया। इन फोर कंपोनेंट्स को इन्होंने आर टाइप बैक्टीरिया के साथ मिक्स किया और ये पाया गया कि आर टाइप जो बैक्टीरिया है, सिर्फ एक कंपोनेंट ऐसा है, यानी डीएनए, जो आर टाइप बैक्टीरिया को वायरुलेंट बना देता है, यानी एस टाइप में कन्वर्ट कर देता है। So by this experiment, this was shown that DNA was the genetic material responsible for inducing smooth character of the cells and their property of virulence in mice. This experiment proved that bacterial transformation involves transfer of a part of DNA from the dead bacterium to the living bacterium. This phenomenon, by which the DNA isolated from one type of cell, when introduced into another type, transfer some of the properties of former to later. This phenomenon is known as transformation. यहाँ एक चीज़ हम और समझ लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी सेल किसी नेकेड डीएनए को जो अपने अंदर इंसर्ट करता है, तो इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये एक बैक्टीरियम है। इस बैक्टीरियम का अपना एक डीएनए है। दिस इज द डीएनए ऑफ दिस बैक्टीरियम। इस बैक्टीरियम को हम एक नेकेड डीएनए मीन्स डीएनए विच इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं है, ये फ्रीली एक सॉल्यूशन में या मिक्सचर में प्रेजेंट है।
सपोज ये एक नेकेड डीएनए है, यहाँ क्या होता है कि ये नेकेड डीएनए इस बैक्टीरियम के अंदर जाता है और अपने आप को बैक्टीरियम के डीएनए में इंसर्ट कर देता है। ये डीएनए यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। So transformation is a process in which a bacteria or any other cell can take up this naked DNA into the cell and insert in their genome. अपने जीनोम में इसको अगर इंसर्ट कर लेता है ये, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। यही ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में हुआ कि एस थर्ड टाइप से डीएनए आर सेकेंड के अंदर जाता है और इसके चारों तरफ एक म्यूसिलेज की कवरिंग बना देता है, क्योंकि म्यूसिलेज ही ये माना जाता है कि म्यूसिलेज की वजह से ही इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई जो बैक्टीरिया है उसमें पैथोजेनेसिटी पाई जाती है। तो यहाँ पर जो नॉर्मली आर सेकेंड बैक्टीरिया जो S third bacteria is heat killed, and the DNA from S third bacteria enters into R second bacteria and convert the R second bacteria into virulent. And this virulency is because of this a polysaccharide sheet which is formed around the R second bacteria. So pathogenicity is because of this sheet, and information for the formation of this sheet is transferred by the DNA from the S third bacteria to R second bacteria. तो यहाँ पर यही होता है कि सपोज ये R second bacteria है and this is the naked DNA of the S third bacteria. Then this bacteria is transformed into the R second bacteria and inserted into the R second bacteria and convert it into S type after forming this mucilage sheet around the bacteria. This is the experiment of Avery, McCarthy and MacLeod. They divided the component of heat killed S third bacteria into three categories, into three groups: the carbohydrate of S type bacteria, protein of S type bacteria, here DNA of S type bacteria, and in this test tube also the DNA of S type bacteria. But here the DNase एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को डाइजेस्ट कर देता है। तो डीएनएज एंजाइम यहाँ पर इन दोनों लास्ट के थर्ड और फोर्थ टेस्ट ट्यूब में सिर्फ यही डिफरेंस है, दोनों में डीएनए ऐड किया गया है, लेकिन यहाँ पर डीएनएज डाल दिया गया है जिसकी वजह से ये जो डीएनए था वो डाइजेस्ट हो जाता है। यहाँ पर डीएनए प्रेजेंट है। तीन टेस्ट ट्यूब में इन्होंने आर सेकेंड टाइप बैक्टीरिया को लिया, चारों टेस्ट ट्यूब में आर सेकेंड टाइप बैक्टीरिया को लिया और इसमें इन्होंने कार्बोहाइड्रेट डाला। इसमें इन्होंने एस थर्ड बैक्टीरिया का कार्बोहाइड्रेट ऐड किया और जब इसको टेस्ट किया, माइस में इंजेक्ट किया, तो माइस को निमोनिया नहीं होता है, यानी आर सेकेंड की पैथोजेनेसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और माइस अलाइव रहते हैं, ज़िंदा रहते हैं। दूसरे केस में प्रोटीन, एस थर्ड से प्रोटीन को लिया, हीट किल्ड एस थर्ड बैक्टीरिया के प्रोटीन को लेकर इसमें ऐड किया
यहाँ भी ये पाया गया कि जो R सेकेंड बैक्टीरिया हैं उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वो नॉन वायरुलेंट ही रहते हैं और माइस की डेथ नहीं होती है। तो यहाँ पर भी माइस अलाइव रहता है। Here also it is alive. In this case, यहाँ पर क्योंकि हमने DNA ऐड किया था और साथ में DNAs भी डाल दिया था, यहाँ पे DNA हम डालते हैं और इस DNA को डाइजेस्ट करने के लिए DNAs भी ऐड कर दिया गया है, यानी इसके अंदर कुछ भी नहीं बचता है। ये भी एस थर्ड बैक्टीरिया का कंपोनेंट था। जब इसको इसमें डालेंगे दोनों चीज़ों को तो ये DNA इस DNA को डाइजेस्ट कर देगा। तो यहाँ पर भी R सेकेंड नॉन पैथोजेनिक ही रहता है, नॉन वायरुलेंट रहता है और जब माइस में इंजेक्ट करते हैं तो ये ज़िंदा रहता है। इस केस में सिर्फ DNA ऐड किया गया था और एस थर्ड हीट किल्ड एस थर्ड बैक्टीरिया का DNA ऐड किया गया है। यहाँ पर ये पाया गया कि कुछ R टाइप जो बैक्टीरिया हैं वो एस टाइप बैक्टीरिया में चेंज हो जाते हैं। तो इस कल्चर मीडियम से जब बैक्टीरिया को लेकर माइस में इंजेक्ट किया जाता है तो माइस की डेथ हो जाती है, माइस मर जाते हैं। और तो आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट इट वाज कंफर्म दैट DNA is the genetic material which transfer the character from one to another organism.